اور موٹر وے پر دھند کے بادل اور حد نگاہ متاثر ہو گئی۔ M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے باعث بادل دکھائی دینے لگے، حد نگاہ متاثر۔ M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور موٹر وے ترجمان کی جانب سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کا راج، بادل اور حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے اس روٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل اور حد نگاہ متاثر، M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں، قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل اور حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل اور حد نگاہ متاثر ہے، جبکہ M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کا راج ہے، دھند کے بادل چھانے کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہو چکی ہے اور ترجمان موٹر وے کی جانب سے M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کیا جائے۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل اور حد نگاہ متاثر ہو گئی، M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے، عثمان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ یہ تو موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر وے M4 کو فیصل آباد سے عبدالحکیم تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ موٹر وے پہ سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن موٹر وے پولیس جو ہے وہ ان کے سفر میں حائل ہوئی ہے اور ایسے میں موٹر وے پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو ان تمام لوگوں کو قافلوں کی صورت میں منزل تک روانہ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وے کو جو ہے وہ حد نگاہ متاثر ہونے پہ بند کیا گیا ہے، تو تاحال حد نگاہ جو ہے وہ 100 میٹر سے کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دھند کے بادل موٹر وے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ جو ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو لوگوں کو جو ہے وہ موٹر وے پہ سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ موٹر وے پہ سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ موٹر وے M3 جو ہے وہ تاحال کھلی ہے، وہاں پہ جی آپ کو سن پا رہے ہیں؟ وہاں پہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں موٹر وے پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو ہدایات بھی جاری کی گئی، شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے، دھند میں سفر کرتے ہوئے فوگ لائٹ کا استعمال کریں، انڈیکیٹرز اپنے آن رکھیں اور لین اور لائن کا موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے ایمرجنسی سے بچا جا سکے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ہے وہ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موٹر وے پہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے موٹر وے پولیس کی جانب سے متعارف کردہ ہم سفر ایپ سے تازہ ترین معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی شکریہ عثمان حیدر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 3 روپے 1 پیسے مہنگا ہو کر 148 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ شہری اور تاجر بڑھتی مہنگائی پر پھٹ پڑے، کہا کاروبار چلائے رکھنا انتہائی مشکل ہو چکا۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 3 روپے 1 پیسے مہنگا ہو کر 148 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ شہری اور تاجر بڑھتی مہنگائی پر پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے اپنے خرچے بڑھا کر عوام پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ جب پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا تو آج کے حکمران کہتے تھے دنیا میں پیٹرول سستا ہے اور پاکستان میں مہنگا، اور آج جب پیٹرول 150 روپے تک لیٹر پہنچ گیا تو کہا جا رہا ہے پاکستان میں پیٹرول سستا ہے۔ میں رشکے والا ہوں، دمے کا مریض ہوں، مکان کرایہ دا 400 روپیہ کلو کیوں مل رہا، چینی 105 روپے مل رہی ہے۔ اسا کتنے آئیے؟ یہ جدوں دا عمران خان آیا انہیں ملک دا بیڑا غرق کرتا ہے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ عوام، انہوں نے سادگی کی بات کی تھی، یہ اپنے خرچے کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دیتے، انہوں نے اپنے خرچے بڑھائے ہیں اور عوام کو انہوں نے اپنا پیسا ہے چنگا۔ پیٹرول پمپ پہ آیا ہوں گاڑی لے کے اور پیٹرول لینے کے لیے، تو یہاں پتہ چلا ہے جی کہ 150 روپے لیٹر ہو گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں، تو خان صاحب میں آپ کو ایک میسج ضرور دوں گا کہ ان لوگوں کو اب پاکستانی عوام لانے کے لیے پھر تیار ہے۔
ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बुलंद तरीन पैदावारी लागत ने कारोबार चलाए रखना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। इन्होंने कहा पेट्रोल महंगा होते ही किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बायस कपड़े की तरसीलात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। राना अब्दुल गफूर कहते हैं 600 रुपए किराए लेने वाले लोडर आज 1000 रुपए मांग रहे हैं। पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है जबकि आमदन ना होने के बराबर है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल और बिजली की कीमत कम की जाए। जी मट साहब, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये मुसलसल बढ़ रही हैं, एक दफ़ा नहीं है, हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं। और पेट्रोल के बढ़ने से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी सारे मामलात हैं, जो रिक्शे हमारा माल लेके जाते हैं, अगर वो 500 रुपया ले रहा था अब वो 1000 रुपया ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरी और कारोबारी तबका दोनों हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मुल्क में जारी बेलगाम महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जहां पर लीग की रहनुमा चौधरी शेर अली और MP मियां ताहिर जमील ने रैली की क़यादत की। कारकुनान की बड़ी तादाद में रैली में शरीक हुए। आए रोज महंगाई बमों के खिलाफ लीगी मतवाले मैदान में आ गए। MPA मियां ताहिर जमील और शिराज कालू की क़यादत में कारकुनान जिला कौंसिल चौक पहुंचे। कारकुनान रैली की सूरत में वहां से पैदल मार्च करते हुए घंटाघर चौक पहुंचे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लीगी कारकुनान ने अपने गमो गुस्सा का इजहार भी किया। आज की जो रैली है ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आवाम का खुला ऐलान जंग है और मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकस और जालमाना पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ अवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर इस रैली में आज मौजूद है। आज की रैली बड़ी कामयाब रैली है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवाले जो है बाहर निकले हैं और 2 दिन की कॉल सिर्फ 2 दिन पहले कॉल की गई ताकि लोग जो है ना वो जज्बे के साथ बाहर निकले हैं और तब्दीली जो ना जल्द आने वाली है। लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। तकरीब से MP मियां ताहिर जमील, टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान, शिराज कालू, ख्वाजा रिजवान असलम बल्ली ने खिताब किया। साबिक मेयर चौधरी शेर अली ने अपने खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि तब्दीली सरकार ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। 1958 अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। उस वक्त स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन कोर्ट गए। उस वक्त के जज मुनीर शेख ने नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लॉ जायज करार दे दिता। इस मुल्क की बदकिस्मती उस दिन शुरू हो गई जिस दिन मुनीर शेख ने इस मुल्क नजरिया जरूरत पेश करता। शदीद सर्द मौसम के बावजूद कारकुनान की शिरकत पर लीगी अहदेदारों ने खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर जंग और चिनौट के शहरी इंसाफ हुकूमत के इंसाफ से नाला, तब्दीली के नारे को आवाम के साथ धोखा करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर झंग के शहरी परेशानी का शिकार हैं। बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में कीमतों में इजाफे के फैसले को गैर दानिशमंदाना इक़दाम करार दिया गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से घरेलू बजट आउट हो गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं और घर की एशिया वगैरह जो भी हमने मंगवानी होती है उसके भी किराए बढ़ने की वजह से हमें बहुत मुश्किल है। आगे बजट हमारा आउट है, इस वजह से गरीब आवाम बहुत पिस रही है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर चिन्योट के शहरी भी हुकूमत से नाला हैं। शहरियों ने तब्दीली को आवाम के साथ धोखा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी। पेट्रोल 3 रुपए महंगा होकर नई कीमत 148 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। चिन्योट के शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से गरीब दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में मजीद पिस जाएगा। पहले भी इतनी महंगाई है कि हम घर का खर्चा चलाएं या गाड़ियों में अपनी में पेट्रोल डलवाएं, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा यही है कि मेहरबानी करके वो महंगाई को कम करें और पेट्रोल में जो है वो कमी लाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शहरी तब्दीली सरकार की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियां मुरतब करे और शहरियों पर इतना बोझ न ला दे जितना वो उठाने की सकत ही नहीं रखते। ज्यादा बोझ लादने से अवामी रिएक्शन हुकूमत और मुल्क की मीशत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। घर बनाना और भी मुश्किल हो गया। तज़ीनो आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी महंगी। लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजिर भी शदीद परेशान। कहा कारोबार मुतासिर हो
महंगाई बेकाबू हो गई, लकड़ी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। लकड़ी की कीमत फी फुट 200 रुपए से 400 रुपए और 1000 रुपए तक इजाफा हो गया। केबल 3800 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए फुट हो गई। ऐश बोर्ड की अव्वल दर्जे की लकड़ी की कीमत 7000 रुपए से बढ़कर 7400 रुपए दस्तयाब है, जबकि दूसरे दर्जे की लकड़ी 5000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए फुट हो गई। लकड़ी की कीमत में इजाफे से लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजर भी परेशान हैं। सदर टेम्बरो आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं, महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। पेट्रोल, बिजली समेत हर चीज महंगी होती जा रही है। कि आज से नहीं, ये 3 साल से सिलसिला चल रहा है कि हर रोज जब सुबह आते हैं तो हर चीज महंगी होती है। जो चीज फरोख्त कर लेते हैं उससे ज्यादा रेट पर मिलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले ये 4 रुपए यूनिट बिजली का बढ़ाया है और आज 3 रुपए, पिछली दफा 5 रुपए बढ़ाया था, आज 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। लकड़ी की कीमत इजाफे से आम आवाम के साथ ताजर तबका भी परेशान है और हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अपनी सवारी खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए बुरी खबर, कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई। मिनी बजट मंजूर होने के बाद टैक्सेस की तफसीलात भी सामने आ गई। गाड़ी खरीदना हर मिडिल क्लास शख्स का ख्वाब, लेकिन हुकूमत इस ख्वाब को डरावना ख्वाब बनाने पर तुल गई। आखिरकार मिनी बजट मंजूर कर दिया गया। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नफाज भी हो गया। 1300 सीसी गाड़ियों पर 2.5%, जबकि 2000 सीसी गाड़ियों पर 5% टैक्स लागू कर दिया गया। फैसलाबाद में सदर अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसफ ने कहा है कि गाड़ी अब लोगों की पहुंच से नहीं, सोच से भी दूर हो चुकी है। 1300 सीसी गाड़ियों पर 2.5%, जबकि 2000 सीसी गाड़ियों पर 5% टैक्स लागू होगा, जिससे आम आदमी के लिए अपनी सवारी खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। सर, कोई ऐसी पॉलिसी पैदा कर दे हमारे लिए, कोई ऐसा काम कर दे, या तो हमारे कारोबार चल जाए, या जो आपने चाइना से जहाज खरीदा ना वो हम पे गिरा के या मार दे सबको, वरना हम रोज मर रहे हैं। सदर अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसिफ ने हुकूमत से अपील की है कि गाड़ियों पर ड्यूटीज का खात्मा करके 5 साल के लिए ऑटो पॉलिसी दी जाए, ताकि हर खासो आम के लिए अपनी गाड़ी खरीदना आसान हो सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग और मुसाफात में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, शहरी चकरा कर रह गए। कहा, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। टोबा टेक्सिंग और मुसाफात में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस के बहरान से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि गैस कई घंटे गायब रहती है और अगर आ जाए तो प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिससे खाना भी नहीं बन पाता। बच्चे बगैर नाश्ते किए ही स्कूल जाने पर मजबूर हैं। दोपहर का खाना बनाना भी किसी अजियत से कम नहीं। गैस की बहुत किल्लत है, ना दिन को आ रही है ना ही रात को आ रही है। शहरी जो है सिलेंडर भरवा रहे हैं और बहुत परेशान है। घरेलू खवातीन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कहती हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी, दूसरी जानिब घरेलू सिलेंडर भी 2500 तक जा पहुंचा है। एलपीजी गैस वो महंगी हो चुकी है, 200 कितने रुपए वो फी केजी हो चुकी है, तो इधर गैस का बिल भी बढ़ चुका है। क्योंकि गैस की किल्लत है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन जो आला हुकाम है वज़ीर आला पंजाब है और गैस के जो आला अथॉरिटी है, वज़रा हैं गैस के, अथॉरिटी को चाहिए कि बहरान को हल करें। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस के बहरान पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। हुकाम बाला से फौरी गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कोरोना के 17 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 2.1% तक रिकॉर्ड। अलाइड अस्पताल, जनरल अस्पताल, सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड्स में मरीज जेरे इलाज हैं। महकमा सेहत ने शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील की ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। डिजकोट में घर घर वैक्सीनेशन का अमल कूड़े की नजर। रूरल हेल्थ सेंटर के अमला ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन गंदे नाले में फेंक दी। में घर घर वैक्सीनेशन का अमल कूड़े की नजर हो गया। रूरल हेल्थ सेंटर के अमला ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन गंदे नाले में फेंक दी। सिटी 41 खबर चली तो CO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद को होश आया और डिजकोट रूरल हेल्थ सेंटर जा पहुंचे, जहां से फेंकी जाने वाली वैक्सीनेशन उठाई गई। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था, वैक्सीनेशन फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये 3-4 दिन हो गए, मैं वहाँ से जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, तो 3-4 दिन हो गए तो यहाँ फेंके को गया तो देखा मैंने वैक्सीन, तो कोई ग्राहक ना अस्पताल का कोई बंदा सिट के गया, कोई रात को फेंक के गया। नहीं जी, घर घर कोई नहीं जाके महकमा सेहत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ।
दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि गुज़श्ता दिनों वैक्सीनेशन फेंकी गई थी, घर घर वैक्सीनेशन का अमल सिर्फ कागजों तक महदूद है। हमने यहाँ से जो वैक्सीन की वायल्स मिली हैं वो सारी कलेक्ट कर ली हैं और इनको इंशाल्लाह हम जाके अभी चेक करेंगे अपने मेन स्टोर्स में भी और जो हमारे हॉस्पिटल्स के स्टोर्स हैं उनमें भी चेक करेंगे, देखेंगे और इंशाल्लाह जिसने भी ये हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे इसकी। गंदे नाले में फेंकी जाने वाली वैक्सीनेशन में साइनोफार्म, पाकवेक, मडर्ना, एस्ट्राजेनिक, फाइजर की वायल शामिल थीं। कोरोना वैक्सीनेशन के ज़ायदल मियाद होने की तारीख 8 अगस्त 2023 है, लेकिन अमला ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। फैसलाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वारदातें। रिपोर्ट जड़ावाला डिवीजन में 56 लाख रुपए की नकब जनी, जबकि थाना मिल्क टाउन के इलाके में 35 लाख रुपए मालियत की डकैती की वारदात हुई। सनती शहर फैसलाबाद चोरों और डाकुओं के नरगे में आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 1 करोड़ रुपए की वारदातें। रिपोर्ट, चोर और डाकू पैसों के अलावा अशिया चुराने और हथियाने लगे। जड़ावाला डिवीजन थाना खुड़ियावाला के इलाका में वाक़ राइस मिल्स में नामालूम मुल्ज़मान नकब जनी करके 27 लाख रुपए मालियत के चावल, जबकि थाना लुंडियावाला की हदूद में वाक़ राइस मिल से 29 लाख रुपए मालियत के चावल लेकर फरार। पुलिस ने एक वाक़े का मुकदमा थाना खुड़ियावाला में दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे वाक़े का मुकदमा थाना लुंडियावाला में दर्ज न हो सका। थाना मिल्ला टाउन के इलाका धनोला रोड पर वाक़ पावर लूम्स फैक्ट्री में मुबैना 35 लाख रुपए की वारदात हुई। 15 मुसल्लह मुल्ज़मान ने मजदूरों को यरगमाल बना के लाखों मालियत का कपड़ा ट्रक में लोड किया। मुतासरा मालिक अदनान के मुताबिक मुल्ज़मान ने मुज़ाहमत पर मजदूरों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुल्ज़मान जाते हुए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी साथ ले गए। ये साथ वाली दीवार से 3-4 लोग फैलांग के आए हैं। उन्होंने आके पहले जरगमाल बनाया लोगों को, फिर यहाँ फैक्ट्री की सीढ़ी लगा के बाकी लोग जो पीछे थे और 8-10 लोग उनको नीचे उतारा है। सबको जरगमाल बना के गन्स थी सबके पास और उनको पहले बांधा है, बांध के उनके मोबाइल छीने हैं। मोबाइल छीनने के बाद फिर इन्हीं के हाथ खोल के इन्हें कहा जी अपना सामान सारा लोड करें। ताले तूले खोले हैं, जो तोड़ने वाले थे जिनकी चाबी नहीं थी उनको तोड़ा है उन्होंने, अपना लोडर अंदर किया है और तकरीबन 35 लाख का सामान लोड करके मिल्ला टाउन पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरा शहरियों ने आला हुक्काम से दाद रसी की अपील की है। कैमरामैन जुनेद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। चिनौट में कचहरी रोड से मुल्हिका कॉलेज रोड खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार गड़े ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगे। ईडीओ कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महकमा आपाशी समेत दीगर सरकारी दफातर भी उसी रोड पर कायम, मगर कई सालों से मुरम्मत न हो सके। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। कचहरी रोड से मुल्हिका कॉलेज रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बनने लगे। कॉलेज रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महकमा तालीम, महकमा सेहत और सिविल डिफेंस समेत जजेस की रिहाइश गाहें भी हैं। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट का दफ्तर होने के बावजूद भी रोड का पैच वर्क न हो सका। शहरी हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों पर नाला दिखाई देने लगे। यहाँ पे जी इंतजामिया बिल्कुल ज़रा टच से मस नहीं हो रही। ये सामने कॉलेज है बच्चियों का, बारिश होती है बेचारियाँ यहाँ गिरती हैं, मोटरसाइकिल के लोग गिरते हैं, यहाँ से जजेस साहबान भी गुजरते हैं, सीनियर हमारे हेल्थ के अफसरान भी गुजरते हैं। पता नहीं क्या मसला है कि डीसी साहब भी इसके ऊपर खसूसी से तवज्जो लें और नोटिस लें। लड़कियों का कॉलेज है, जजेस कॉलोनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, ये सारे रोड जो है खस्ता हाल ही हैं, खस्ता और अरसा दराज से हैं। इसकी कोई भी परेशान हाल नहीं है, ना उसकी मरम्मत की जाती है। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों समेत कॉलेज रोड की हालत जार अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से तमाम बड़ी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।